Good morning, students. This is chapter number 11, Force and Pressure. And today's topic is types of forces. Now, we are discussing the type of forces. Now, see, there are mainly two types of forces. One is contact force and another is non-contact force. Now, see, if the interaction between two objects with the help of physical contact, then that is called contact forces. And if there is an interaction between two objects without any physical contact, that is called non-contact forces. Right? So we will discuss first of all contact forces. These forces exerted by one object to the another when they are in contact to each other. Right? For example, muscular force. Number 2, force of friction. Now, muscular force, in a previous lecture you have already seen a picture in which the car is pushing by a person. It means the man and the car are in physical contact. So, that force is contact force. And moreover, this force is muscular force. Right? Now, second is force of friction. In force of friction, an object slides over the another object. Means there are two objects. A body is sliding over the another body. So they are in physical contact. So that force is also contact force. Right? Means the two objects should be in physical contact to each other. Right? Next is non-contact force. These forces exerted by one object on another without any physical contact. So it is called non-contact force. For example, magnetic force. Now if there are two magnetic poles, for example these poles are north pole, so they will repel each other. Means both the poles are experiencing the force without any physical contact of the given poles. Next is electrostatic force. Now there are two charges. So like charges repel each other, whereas unlike charges attracts each other. But both the charges are not in contact to each other. Next is gravitational force. Now see, there is a force between Earth and Sun. But Earth and Sun are not in physical contact. So this gravitational force is also non-contact force. Now we explain all these forces in the next slide. Now first one is muscular force. Muscular force is the force exerted by the muscles of our body. We use muscular force for our various activities. Right? Similarly, animals also use muscular force, like in bull cart. Now, bulls muscle force acting on the cart, right? Horses, camels, donkey, elephants are the various examples of muscular force. Means muscles energy is converting into some another energy, right? So, muscular force is a contact force. Now see, there is a cyclist. Now its muscle power also running the cycle. Right? See, this is the hurdle race. Now the lady is jumping the rope. It means she is using her muscular force. In the next picture, the horses are pulling the cart, right? So muscular energy of horse is using to move the cart. Next in fourth picture, the camel's muscular energy has been using to pull the cart, right? So these are the example of muscular forces. Now force of friction.
force of friction is the force which opposes the motion of an object over the surface, right? Suppose a body is moving over the surface of another body, so force of friction will oppose this motion. Example, a ball rolling on the ground gradually slow down and come to the rest due to force of friction. देखिए जैसे बॉल जो है वो रोल डाउन कर रही हो ग्राउंड के ऊपर, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे बॉल रुक जाती है, चाहे वो बॉल बड़ी हो चाहे छोटी हो। बड़ी बॉल जल्दी रुकती है, छोटी बॉल देर में रुकती है। दैट इज बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज अपोजिंग द मोशन। कुछ ऐसा फोर्स है जो इसके मोशन को कम करता चला जा रहा, एंड अल्टीमेटली इट गेट स्टॉप, राइट? If we stop the pedaling a bicycle, it gradually slow down and comes to the rest due to force of friction. साइकिल आप चला रहे हैं, आपने पेडल मारना बंद कर दिया, तो थोड़ी देर बाद साइकिल रुक जाती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स जरूर है अपोजिट डायरेक्शन में जो इसके मोशन को कम करता चला जा रहा है। तो क्या होता है, साइकिल की स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाती है और एक बार आके वो रुक जाता है, ठीक है ना? क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, उनके फिजिकल कांटेक्ट से लग रहा है, इसलिए ये एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है? नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ बॉल, दिस इज द पिक्चर ऑफ साइक्लिस्ट, है ना? तो साइक्लिस्ट को क्या करना पड़ता है, बार बार पेडल मारने होते हैं, बार बार मस्कुलर एनर्जी लगानी पड़ती है, मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है, तभी जाके वो जो साइकिल है वो मोशन में रह पाती, ठीक है? नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। अब इस फोर्सेज में क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स exerted by the magnets or magnetic poles. Force of attraction and repulsion between two magnetic poles. Force exerted by magnet on the piece of iron at steel. देखिए दो मैग्नेट ही आपस में फोर्स नहीं लगाते, बल्कि मैग्नेट क्या करता है, स्टील पे या आयरन पे फोर्स लगाता है। आपने देखा होगा मैग्नेट को अगर आयरन के टुकड़े के पास ले जाएं तो क्या करता है, आयरन के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है ना? लेकिन ये जो दो फोर्सेज लग रहे हैं इसमें कांटेक्ट नहीं है, इसलिए इसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पिक्चर में जो रेड पार्ट है ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। अगर नॉर्थ और साउथ आसपास होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, लेकिन अभी तो ये कांटेक्ट में नहीं थे, फिर अट्रैक्ट कैसे हुए? क्योंकि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। अगर एक साउथ हो दूसरा नॉर्थ हो तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा ही लगेगा दोनों के, ठीक है? लेकिन अगर दो नॉर्थ आसपास हो या फिर दो साउथ पोल आपस में आसपास हो तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, एक दूसरे से दूर धकेलने लगते हैं। नाउ दीज पोल्स आर आल्सो नॉट इन कांटेक्ट बट दे आर रिपेलिंग ईच अदर, यानी फोर्स अभी भी लग रहा है, ये फोर्स हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है? अब आप यहाँ पे देख रहे हैं अगली पिक्चर में एक मैग्नेट है और यहाँ नीचे कुछ स्टील नेल्स पड़े हुए हैं, स्टील नेल्स कहो, आयरन नेल्स कहो या फिर ऑल पिंस कहो। ये जो मैग्नेट होता है, चाहे ये इसका साउथ हो चाहे नॉर्थ, कैसे भी रखोगे ये आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। अब दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वो आयरन को अपनी तरफ खींच रहा। इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है? अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी, ठीक है? अगर कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है तो दोनों कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी फोर्स लगा रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हुए या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज हुए तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
इवन दो अगर कोई चार्ज बॉडी है तो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक, अब आप ये नीचे एग्जांपल्स देख रहे हैं। द प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज बाय रबिंग, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ थी, उसको आपने चार्ज किया तो क्या होगा, इट अट्रैक्ट्स पेपर पीसेस। ठीक है, द प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज बाय रबिंग विद पेपर repel the suspended plastic charge by rubbing with the paper। कहने का मतलब कि अगर दोनों का नेचर एक जैसा हो तो एक दूसरे को रिपेल करें, और अगर इन दोनों का नेचर एक दूसरे से अपोजिट हो तो क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज अब एक दूसरे के जैसे नहीं है या एक जैसे हैं, तब भी इनके बीच में फोर्स लगता है क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये लास्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, ग्रेविटी वर्क करती है, दो मास बॉडी के बीच में फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अदर ऑब्जेक्ट, इट पुल ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड द अर्थ। आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको छोड़ेंगे ना तो अर्थ की तरफ चला जाता है, यानी नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब मान लिया आपके हाथ में जो है कोई बुक है, आपने उसे छोड़ दिया तो बुक को कौन अट्रैक्ट कर रहा, अर्थ, जबकि बुक और अर्थ एक दूसरे का कांटेक्ट में नहीं, तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज ऑल्सो नॉन कांटेक्ट फोर्स। अ कॉइन और पेन फॉल्स डाउन व्हेन दे स्लिप ऑफ आवर हैंड, कोई कॉइन हो या पेन हो, वो अर्थ की तरफ गिरता है। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स फॉल डाउन, बॉल को ऊपर फेंकोगे तब भी वो अर्थ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ये कुछ पिक्चर्स हैं आपके सामने। ये एक बॉल को फेंक रहा, बॉल को फेंका तो फिर अर्थ की तरफ आ गया, क्यों, क्योंकि अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लीव्स and fruits fall to the ground when they get detached from the plant। पत्तियां और फल जो होते हैं पेड़ से जब टूटते हैं तो वो ग्राउंड की तरफ गिरते हैं, वो इसलिए क्योंकि अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, वाटर इन रिवर फॉल डाउनवर्ड्स, जो पानी होता है वो हमेशा नीचे की तरफ गिरता है क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो दीज आर द पिक्चर्स, आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है। इस तरीके से जो है हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी का जो पोर्शन है इस फोर्स वाले चैप्टर का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में